So in the previous video on alcohols, phenols and ethers, I discussed journal methods of preparation of alcohols. And today we are going to discuss industrial methods of preparation of alcohols. Now there are three methods, industrial methods of preparation of alcohols, and these are industrial methods. First, very important one is using alkenes from alkenes. Second is known as oxo process, which is not the part of ISC syllabus. And third is fermentation, which is also not the part of ISC syllabus. So these two are excluded from ISC syllabus. Now I will start with alkenes. So in alkenes, we further have two methods. One is basically this with industrial preparation of alkenes, we call it hydration of alkenes. So what happens is we add water molecule on alkenes. So there are two methods. One is direct addition of water. Very simple one again. Direct addition of water. And then here it is, there's another method which is indirect addition of water. Okay. Now, in direct addition of water, this is known as acid catalyzed hydration. So in this process, what happens is, okay, yeah, so indirect addition of water, what happens is the alkene is taken and it is passed through concentrated H2SO4 and then it is hydrolyzed. Upon hydrolysis, it gives alcohol. So direct addition of water is done using concentrated H2SO4 and water, and then passing this, adding boiling water into it. ठीक है, plus इसके बाद हम क्या करेंगे, we'll add boiling water. I'll write the reaction for the same on the next page. And then in the indirect addition of water, we have two methods, further two methods. One is known as hydroboration oxidation, okay, which is done using diborane and hydrogen peroxide. So this is done using diborane and acidified or alkaline hydrogen peroxide. And the another method is known as oxymercuration reduction. Oxymercuration reduction, which is done using mercuric acetate, which is CH3COO. Okay, this. So these are three methods of preparation of alkenes, method of preparation of alcohols, industrial methods which use alkenes, direct, indirect. Indirect, we have two further methods. Now coming to oxo and process and fermentation, I will discuss them later on after I complete the reactions of direct addition of water and indirect addition of water to alkenes. So let us start with the direct addition of water. So let me number them 1, 2, 3, and then direct subpart, and then hydroboration A, and this is B. So I am starting with the hydration of alkenes. And in hydration of alkenes, I am taking a first method, which is direct addition of water. So
if I write it simply, I'll write it CH2 plus water in the presence of an acid. This is concentrated H2SO4, and we get the corresponding alcohol. What is happening is water ka H part is adding on one carbon and OH part is adding on one carbon, and that's why we get the alcohol. Okay, and along with that, again sulfuric acid will be obtained in as a product, as a byproduct. So ये हो गया आपका direct addition. Now, in direct addition of water, if there is unsymmetrical alkene like this is an unsymmetrical alkene. So what will happen here? How do we add water here? OH किसके पास जाएगा and H किसके पास जाएगा? So this will happen according to Markovnikov rule. So Markovnikov's rule addition होगी in this case. So according to that, negative part goes to this carbon and positive part, that is your H, goes to another carbon. So OH जाएगा यहाँ पे and H जाएगा यहाँ पे. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि how it is done using sulfuric acid. So what happens is, say for example, I take CH2, this ethene. This is sulfuric acid, HOSO2OH. I'm writing it like this. So what is happening is CH3, CH2. Actually, this H part is going here and the rest remaining part is going here. So it becomes OSO2OH. Now, through this solution, we add boiling water. Boiling water. And on adding water, we get CH3, CH2OH plus H2SO4. So this is how the reaction is happening over here. So this is direct addition of water. Now, second method of hydration of alkenes is indirect addition. Indirect addition of water. So here I discussed there are two methods. First is hydroboration oxidation. So hydroboration oxidation में we use diborane, which is an electron deficient species. So what happens is, now here addition. Okay, now here also very important thing I'll tell you. So let us start with the symmetrical alkene. This one, half B2H6, because only BH3 is being added. So what we get is, we get CH3, CH2 thrice B, triethyl borane. This is triethyl borane. And then to this solution, we add hydrogen peroxide, maybe alkaline, or we can take it acidic also, and acidic hydrogen peroxide, and then we get ethanol in this case, plus boric acid H3BO3. So this is hydroboration oxidation. So here first hydrogen and bromine are being added. This is hydroboration, and this is oxidation, which is taking place with the help of hydrogen peroxide. Now, in case of unsymmetrical alkene, what will happen? Unsymmetrical alkene. Here also the addition takes place. Here addition takes place according to anti-Markovnikov rules. Anti-Markovnikov's rule. So what will happen? Same thing as it happened above will happen here. Tripropyl borane, and then upon adding hydrogen peroxide alkaline,
it will form propyl alcohol or propane 1-ol plus H3BO3. So direct addition was Marconic addition. Indirect addition, the hydroboration oxidation one is anti-Marconic addition. So basically यहीं पे सब कुछ ऐड हो रहा है. यहीं पे hydrogen is being added over here. Hydrogen is being added over here, and your boron part is being added over here. While in Marconic addition, H comes here and the other part goes here. Now in anti-Marconic, what is happening? H is coming here and the remaining part is going on this carbon. So let me write the mechanism of it. What happens is, actually, this is your unsymmetrical alkene. So borane BH3, being electron deficient species, want to be associated with the electron pi electron cloud. ये pi electron cloud है, ये इससे चाहेगा bond करना because it is an electron deficient species, this one. So this will form a sort of complex being a little electronegative. So this sort of complex is being formed. अब जब ये complex बनेगा, it will be, obviously this is unstable. So this complex will break like this, that this hydrogen will go here and then this bond will break. Okay, so basically CH3 CH2 BH2, this species will be formed. Now this species will add on another alkene molecule. ये जो बना आपका ये species, मैं इसको अब यहाँ लिख रही हूँ, CH3 CH2 BH2 will add on another alkene molecule to form in the same way, बिल्कुल वैसे जैसे उसने ऐड किया कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाएगी और जो बोरोन के साथ बाकी बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ जाएगा. So this will form CH3 CH2 twice BH, ये बनेगा. अब इसमें फिर एक मॉलिक्यूल अल्कीन का ऐड होगा. आपने देखा होगा मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे इस रिएक्शन में. आई टुक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन. आई कैन शो यू. सी 3. सो यहाँ पे भी 3 लिखने हैं हमें, 3. So CH3 CH2. So this is CH3 CH2 2 B, not 2, thrice हो जाएगा ये. Yes. So hydrogen adds on to this part and remaining part goes to another carbon. So this because of that यहाँ पे हमारा जो है एंटी मार्कोनिक एडिशन हो रहा है. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हो रहा है वो इस तरह से ऑब्टेन हो रहा है कि हमारा जो एंटी मार्कोनिक ऑफिल्ड अकॉर्डिंग हो रहा है. एंड एक्चुअली इसके होने से बेनिफिट ये हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स में कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको ये प्लस आई इफेक्ट जिस मिथाइल ग्रुप इज गिविंग, because of plus I effect, it is generating this slight positive charge over here, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एडिशन. सो ये हमारा है बी मेथड of indirect addition, oxymercuration reduction. Sorry, it was oxymercuration reduction. इसमें क्या होगा? इसमें what is happening over here is कि आपने एल्कीन लिया, okay, you are adding mercuric acetate, right? So first of all, what we do, first we do oxymercuration using this compound, and then we do reduction using sodium boron hydride. ठीक है, तो यहाँ पे
क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा विच इज CH3 कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं सीधा प्रोडक्ट बना रही हूँ along with just a second CH3 या ओके ये होगा, पहले तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगी ना, तो CH3CHOH and HgOCOCH3. This will be formed. Then this will be reduced using sodium boron hydride in alkaline medium, and it will give us CH3CH2OH. ये मिलेगा हमें एज अ वो, एंड हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा HgOCOCH3. So we will be getting this. So this is basically यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गई, हमारा ये बन गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन एडिशन हो गया. अब आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में. इसमें एडिशन कैसे होगी टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स? इट विल फॉलो मार्कोनिक एडिशन. अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में the addition will happen according to Markovnikov rule. So यहाँ पे जो एडिशन होगी वो होगी Markovnikov's rule. तो मैं क्या कर रही हूँ, along with sodium boron hydride, ये मैं एक साथ ही लिख रही हूँ. So we will get product as ये, जिसमें OH यहाँ होगा नेगेटिव पार्ट, and along with that HgOCOCH3. This is Marconi addition, जिसमें नेगेटिव पार्ट हमारा इस कार्बन में गया, हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन में गया. मैं इसको इलेबोरेट कर देती हूँ इसके मैकेनिज्म को. ठीक है, सो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमने लिया था मर्क्यूरिक एसिड विच इज OCO CH3OCOCH3. करेक्ट, ये था. यहां से एक जो है आपका ये एसिटेट ये निकल जाएगा एंड ये अटैच हो जाएगा, ये जो जस्ट अ सेकेंड, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जो ये बॉन्ड है इससे ही हमारा मर्क्यूरी अटैच हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, CH3CH2 एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे भी HgOCOCH3. So this complex will be formed. This complex formed will take up water molecule. यहाँ से वो वाटर लेगा बेसिकली. यहाँ पे वाटर के पास जो है, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव लिटिल पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे लिटिल नेगेटिव चार्ज है. सो व्हाट विल हैपन इज, ये जो वाटर है ये यहाँ इसका OH पार्ट यहाँ चला जाएगा एंड देन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. सो दिस विल बी फॉर्म्ड CH3CHOH. वाटर यहाँ ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई इसीलिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. सो HgOCOCH3, क्योंकि ये जो वाटर है इसका ऑक्सीजन पार्ट जो है इस कार्बन से कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है 3 हो गई है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, ये हो गया. देन इसके बाद ऑब्वियसली ये प्रोटॉन निकलेगा, तभी यहाँ पे OH अटैच होगा, मतलब ये OH बनेगा. सो दिस इज CH3CHOH CH2 HgOCOCH3. ठीक है जी, ये हो गया. अब इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद हमने लिया है सोडियम बोरोन हाइड्राइड रिडक्शन के लिए. उससे एक हाइड्रोजन जाएगा, जो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जो हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पे एंड फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. सो ये बनेगा CH3CHOH CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा HgOCOCH3. मर्क्यूरस एसिटेट HgOCOCH3 हो जाएगा, रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास. तो दिस इज हाउ द रिएक्शन अकर्स.
सो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, हाँ ये ठीक है कि अनसिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली मार्कोनी एडिशन हो रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, पहले इस बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड पे की वजह से मर्क्यूरी इससे अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, एंड मर्क्यूरी दिस विल बी मर्क्यूरी दिस एसिटेट पार्ट अलोंग विद दैट विल अटैच, एंड ये निकल जाएगा माइनस CH3 COO नेगेटिव, इतना ये निकल जाएगा एंड ये पार्ट अटैच हो जाएगा. अब ये पार्ट अटैच होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीजन पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस चार्ज की तरफ, एंड वाटर विल गेट एडेड ओवर हियर. अब हमें चाहिए OH, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है तो एक प्रोटॉन लॉस होगा यहाँ से एंड OH हो जाएगा. अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, जो इसको हाइड्रोजन दे देगा, एंड ये अल्कोहल बन गया, एंड आपका हो गया यहाँ पे ये कंपाउंड रेडी. एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रही है इस केस में. सो दिस इज हाउ वी डू oxymercuration reduction, and these are the methods using alkenes. So first था direct addition, Marconic addition. Second में indirect में two थे. First है hydroboration oxidation, which is anti-Marconic, and the third one indirect method का यानी कि second one is oxymercuration reduction, which is Marconic oxidation. तो ये आपको पता होनी चाहिए तीन चार चीजें. तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, ठीक है, ये है मार्कोनिक एडिशन, ये है एंटी मार्कोनिक एडिशन, एंड दिस इज अगेन मार्कोनिक कफरूल एडिशन, राइट. सो अभी हमारे पास बचती है ऑक्सो प्रोसेस एंड फर्मेंटेशन. तो नेक्स्ट करते हैं हम ऑक्सो प्रोसेस सेकंड, विच इज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ISC. ऑक्सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल. इसमें हम अल्कीन्स को यूज करके उनको पहले हम चेंज करते हैं इनटू एल्डिहाइड्स, एंड देन हम उनको रिड्यूस कर देते हैं अल्कोहल्स में. सो व्हाट हैपेंस इज, अल्कीन जैसे कि फॉर एग्जांपल इथीन, इट रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट which is octa carbonyl dicobalt, और कार्बोनिल डाइकोबाल्ट भी बोल सकते हैं इसे, कार्बोनिल कोबाल्ट. जस्ट अ सेकंड, ये है कोबाल्ट और ये है CO. तो ये ऐसे भी होता है या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये. सो इसकी प्रेजेंस में ये और हाई टेम्परेचर प्रेशर, मुझे ये रिवर्स करना पड़ेगा. सो यहाँ पे आई एम राइटिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इट विल चेंज इनटू एल्डिहाइड 1 कार्बन मोर. ये जो कार्बन है कार्बोनिल का, ये सॉरी ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो बेसिकली ये यहाँ चला गया तो हमें एल्डिहाइड बन गया. अब इस एल्डिहाइड की रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट करेंगे. सो वी विल गेट दी कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि 3 कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा. तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हमें अल्कीन से, एक कार्बन मोर हमें अपना अल्कोहल मिलता है. इसमें 2 कार्बन थे एंड हियर वी हैव गॉट 3 कार्बन का अल्कोहल. थर्ड प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इज fermentation. Now fermentation is a very simple process. I mean as of now समझना बहुत easy है. Fermentation is the most common method which is used for the preparation of ethyl alcohol for on large scale for preparation of ethanol or ethyl alcohol. So fermentation एक process होती है. fermentation होती क्या है? Fermentation is basically breaking down of large molecules into simpler ones in the presence of catalyst. Fermentation is breaking up of large molecules into simpler ones in the presence of enzymes. Basically होते हैं यहाँ पे use as catalyst is known as fermentation. ठीक है, fermentation हमने घर में भी बहुत सारी चीजों में देखी है होते हुए. ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस केस इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स यानी कि इथेनॉल में जो फर्मेंटेशन की जाती है दैट इज डन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डन मेनली टू
गेट इथाइल एल्कोहल। एंड जो आपके कार्बोहाइड्रेट है इसके लिए वो मेनली शुगर यानी कि आपका सुक्रोज होता है या फिर स्टार्च यूज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से यूज होते हैं, इधर सुक्रोज और स्टार्च। सुक्रोज कहाँ से ऑब्टेन होगा, सुक्रोज ऑब्टेन होता है आपका मोलासिस से। ना व्हाट आर मोलासिस, मोलासिस होते हैं बेसिकली शुगर केन इंडस्ट्री में एक डार्क दिस थिंग सिरपी सा लिक्विड होता है, सिरप होता है, थिक सिरप होता है विच इज नोन एज मोलास। जब शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन से शुगर बनाई जाती है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है, तो वहां पे उसमें से मैक्सिमम जितना भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कर लेते हैं, शुगर मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। देन मोलासेस बच जाते हैं जिसमें ज्यादा शुगर एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो उसमें अभी जो है वो टर्न हो जाता है इनटू अ ब्लैक डार्क ब्राउन ब्लैक सा सिरपी सब्सटेंस विच इज नोन एज मोलास। सो शुगर इंडस्ट्री से ऑब्टेन होता है ये। तो वहां से हम क्या करते हैं, अपनी जो ये शुगर को यूज करते हैं, सुक्रोज को यूज करते हैं बेसिकली, एंड वी ऑब्टेन आर इथाइल अल्कोहल। उसकी फर्मेंटेशन की जाती है एंड इथेनॉल इज ऑब्टेन। और अगर स्टार्च से बनानी हो तो स्टार्च को मेनली कहां से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम पोटेटोज, ठीक है, या आपके राइस से या मेज और बार्ले, कहीं से भी स्टार्च ऑब्टेन करके उसकी फर्मेंटेशन की जाती है। फर्मेंटेशन में करना क्या है, चाहे शुगर की फर्मेंटेशन हो चाहे स्टार्च की फर्मेंटेशन हो, बेसिकली हमें इनको ब्रेक डाउन करना है इन मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपलर वन। शुगर जो मॉलिक्यूल है उसमें 12 कार्बन है और हमारा जो स्टार्च है वो एक का सॉर्ट ऑफ पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हमें ब्रेक डाउन करना है इनटू इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एज कैटलिस्ट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मैं अभी दो पार्ट्स में करवा रही थी, शुगर एंड नेक्स्ट इज स्टार्च, ठीक है। तो शुगर से करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम अपनी C12H22O11 विच इज नोन एज सुक्रोज ये लेते हैं, इसकी करते हैं फर्मेंटेशन एंड द एंजाइम यूज्ड ओवर हियर इज इनवर्टेज, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है। और ये एंजाइम यीस्ट से ऑब्टेन होता है। देन दिस ब्रेक्स अप इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। आई मीन इनका जो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ये अपने आइसोमेरिज्म में अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे आर डिफरेंट। दे आर सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन होते हैं। देन हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज किसी को भी लेके, दोनों को लेके बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लेके फिर एक और एंजाइम की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं विच इज नोन एज zymes एंजाइम, एंड देन इट चेंजेस इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। और ये जो एंजाइम्स है दोनों इनवर्टेस एंड zymes, ये दोनों ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से ऑब्टेन होते हैं। देन स्टार्च से, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5N, ठीक है। इसके डबल एन, इसलिए मैंने एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लिए। इसको ट्रीट करते हैं मतलब इसकी फर्मेंटेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेस। डायस्टेस इज अगेन एन एंजाइम जो कि जर्मिनेटेड बार्ले से ऑब्टेन होता है विच इज, जिसको हम माल्ट भी बोलते हैं। बार्ले को जर्मिनेट करते हैं एंड उसको हम माल्ट बोलते हैं, वहां से एंजाइम डायस्टेस ऑब्टेन होता है जो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को इनटू शुगर नोन एज माल्टोज। दिस इज नोन एज माल्टोज, ठीक है। देन उसके बाद इस माल्टोज को, इस शुगर को, इसकी फर्मेंटेशन की जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज जो कि ऑब्टेन होता है यीस्ट से, माल्टेज, एंड देन इट चेंजेस इनटू, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। जैसे इसमें कैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था एक फ्रुक्टोज का था, इसमें दोनों ग्लूकोज के होते हैं, ठीक है। एंड जैसे हमने पहले किया, फिर ग्लूकोज को लिया
C6H12O6 जाइमेज की प्रेजेंस में it gets fermented to ethyl alcohol. Ethanol. So this is known as fermentation of carbohydrates, either using sugar or using starch. Sugar obtain होगी molasses से. Molasses क्या होते हैं? Thick syrupy substance होता है which is obtained from sugar industry, जिसमें जो तरह का वेस्ट होता है शुगर वहां के लिए, और वहां से फिर हम उस सुक्रोज को एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं विच चेंजेस इट टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. देन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को जाइमेज की प्रेजेंस में रखते हैं विच फर्मेंट्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनटू इथेनॉल. एंड अगर स्टार्च की करनी हो तो स्टार्च को पहले डायस्टेस एंजाइम से ट्रीट करके प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे. इट चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टोज. देन माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में चेंज होगी इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज को फिर जाइमेज से ट्रीट की प्रेजेंस में जब ट्रीट करेंगे देन इट गेट्स फर्मेंटेड टू इथाइल अल्कोहल. ये दोनों एंजाइम्स ऑब्टेन होते हैं हमारे यीस्ट से. ये दोनों कहां से ऑब्टेन होते हैं? यीस्ट से. ठीक है. डाइस्टेस ऑब्टेन होता है आपका जर्मिनेटेड बार्ले से, माल्ट जिसको बोलते हैं, फ्रॉम माल्ट. एंड माल्टेस और जाइमेस ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम ईस्ट. ये ईस्ट में होते हैं, उससे ऑब्टेन होते हैं. तो दिस वाज अबाउट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ alcohols. So next topic, in the next video I will be taking up physical properties and few chemical properties of alcohols.